सो हेलो एवरीवन, हाँ अभी हमारी बुक सीरीज चल रही थी रिच डैड पुअर डैड. सो एवरीथिंग हैज़ अ गुड साइड टू इट, everything had a bad side to it, and we're gonna look always the good side of it, but we're gonna learn from the bad side. So इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते पूरा दिन चला जाता है, बट द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ इट, यू कैन ऑल्सो मेक द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ इट. लाइक जो रील्स एजुकेशनल होती है उन्हें देखो, और उसमें जो रेफरेंस दिए होते हैं वहाँ पहुँचो और उस रेफरेंस को पढ़ो या समझो या जो भी करो. जैसे मुझे ये एक इंटरव्यू मिला जिसमें वो एक धमाकेदार बातें कर रहा है. सो लेट मी शो यू वो क्या कह रहे हैं. लेट्स सी टुगेदर. Subject. I call it 5 simple steps to go from average to fortune. Let me give you this simple little talk. How to go from average to fortune. There's 5 simple steps. You might like to make a note of them. Here's the first one. Get serious. Get serious. That's number 1. That's number I don't know any substitute for that. You've really got to get serious. You don't have to be grim, but you must be serious. I know a guy. Yep. So इसी बात को लेके कल मेरे भाई से मेरी बहस हो रही थी कि ही इज़ नॉट सीरियस. मैंने कहा भाई सीरियस हो जाना. लाइक यू नीड टू मेक अप योर माइंड, जस्ट गेट. और भी पॉइंट्स हैं. मैंने पहला पॉइंट बताया, गेट सीरियस. लाइक you have to have a plan in your mind, like you need to do this no matter what. You need to focus beyond that. So हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, but be serious about what you're gonna do. So that's the first point. कल maybe हम डिस्कस करते हैं second point, but ये छोटी सी रील है, हम देख सकते हैं जल्दी से. नहीं, let me just show Guy you. that's got a half a dozen jokes keeping him from becoming wealthy. He's not known as rich. He's known as a joker, which I guess is okay if that's the kind of life you want to live. But it really isn't the best way to live. To go from average to fortune, you must get serious. And you must get serious about 2 very important things. Number 1 is setting your goals and where you want to go. Designing the next 5, the next 10 years is so vitally important. What do you want to do economically? Where do you want to go? What do you want to be? What would you like to have? What would you like to share? How much would you like to earn? How far would you like to go? Those are some major questions to ask. And for that all to work out like you want it to for the next 5 or 10 years, in my personal opinion, you've got to get serious. Then you have to get serious about another important subject. And that important subject is called personal development. Personal development is striving hard to become the kind of person that you want to be. And to become the kind of person you want to be, you've got to work at it. 10 years from now, you will surely become someone. The big question is, who? What are you becoming? And if you go to work on it now, sure enough, in a very short period of time, you can take on a new direction to become the kind of person you want to be. There's a very important question to ask, and the question is, 10 years from now, you will surely arrive. And the question is, where? So to answer the question of where you want to arrive and the kind of person you want to be, you've got to get serious. So that's point number 1. To make your life worthwhile and unique, to go from average to fortune, you've got to get serious. Now, the second point is get smart. To make your life work out worthwhile, you've got to have some ideas. You've got to have the information. So you've got to be smart. In fact, in this decade, you must be much smarter than you were in the last decade. You've got to read the books. You've got to come up with the information. When I have a chance to talk to the high school kids, that's the theme of my talk. Get smart. There's nothing worse than being stupid. And if you will read the books, learn from your experiences, do all the things that you possibly can to get the information, sure enough, you'll be wiser this year than you were last year. And I've got a few techniques that I teach in my seminar on how to get smarter. Keeping a journal, going to the lectures, going to the seminars, listening to the sermons, picking up ideas from other people. You just must keep up this steady process of learning. Never cease your quest for knowledge. And that's one of the key points to go from average to fortune. Get smart. Now here's number 3. You've got to get going. All of the things that you've learned will not do you that much good if you don't put it into an action plan. You've got to get going. In my management and leadership seminar, we teach game plans, how to put all the good things that you've learned into action. Economic action, social action, personal action. How to make the changes and how to actually do the work, how to actually function. Get going, that's
Some people are ever learning, but they don't put it into action. They don't really take the action. It's like the man who keeps bringing materials to the building site and never builds anything. He keeps bringing in the sand and the gravel and the windows and the doors and the roofing material, and he just stacks up all these supplies, but he never builds anything. See, if you do that long enough, fairly soon they'll come and take you away. You've got to do something with what you've learned. You've got to take action. You've got to get going. So that's one of the most important things to learn, how to design your days, how to design your weeks, how to design the months, so that you take the proper action to get the proper return that you're looking for, whether it's economic or personal. Get going. Now here's number 4. You must get excited. And not just the false enthusiasm of just pure positive thinking. You've got to get excited over some very basic things. One is, get excited over your ability to make yourself do the necessary things. Because discipline is major step 1 toward personal progress. And anytime a person wishes to, they can make major changes in their life, personally and socially and financially. It doesn't ever have to be the same after today. No telling what you could do today if you really wish to. The act of murder is a clear indication that a person in one drastic act can forever change the course of their life. It just happens to be in the negative direction. What I would ask you to do, starting today, is get excited about committing an act that's positive, an act that's constructive, to make the changes in your life that you want made, and to go the direction that you want to go. So that's number 4, get excited. Get excited about your potential. Human capacity is usually never the problem. Little children can learn several languages. But we can learn to do the most incredible things. All we need to do is take the time to do it. So it's not a matter of capacity. It's a matter of judgment. It's a matter of excitement. It's a matter of will. And it's a matter of wanting to bad enough. So it's pretty exciting to know that any day you wish, you can change your life. Any day you pick out, you can make major changes. It doesn't ever have to be the same again. And that's exciting. Knowing that intellectually and personally, you can actually do the things that will make major changes in your life. That's number 4. Number 5 is get away. I have found, especially in the last 15, 20 years, that there's an important thing called life balance. You've got to learn to get away. You must learn to get away and be alone. Learn to get away and reflect. Learn to get away and learn how to live as well as how to earn. How sad it would be to learn how to earn well, but not learn how to live well. You must balance your life. We teach something, especially in my staff, I teach something called lifestyle. Lifestyle is how you learn to live your life. Some people have money, but they don't even know how to spend it. They have time, but they don't know how to spend it. Some people are successful, but they don't know how to... कपड़े धोने की साबुन नहीं। वो सर्फ है तो सर्फ से कपड़े कैसे धोने? उसको हल्का सा स्प्रे कर ले। क्या धोना तेरे को? बनियान रख तो धोनी है। जैसे बनियान को फैला नीचे, उसके बाद हल्का सा वो पाउडर छिड़क दे, गीली करके। बनियान को गीली कर दे, अंडरवेयर को गीली कर दे, उसके बाद हल्का सा वो छिड़क दे, और फिर हाथ से ऐसे मसल ले, झाग हो जाएगा, हो गया साफ। लेकिन सुन, मैं रोटी बनाऊं कि तू ओट्स खाएगा? मैं अपने कॉर्नफ्लेक्स घर में, क्योंकि मैं रोटी बनाऊंगा, अभी बना रहा हूँ जल्दी, क्योंकि जिम नहीं जा रहा। बना लो, आप अपने लिए बना लो, मैं तो ले जाता हूँ। ठीक है, फिर तुझे दूध लेने जाना पड़ेगा नीचे। ले आए तो चल फिर ठीक है। My goodness, I'm so sorry. अपन छूट गए, अपन शायद यहाँ पे। $5 crushes it. रुक जाओ, वापस चला। They don't know what to do with it. Right. They don't get joy from it. Rather, they get animosity. A father takes $5, crushes it, and throws it at his son and says, if you need it that bad, take it. Now, it's the same $5, but instead of dispensing it with joy, he dispenses it with animosity. That's the difference in not knowing how to live. It's called lifestyle. Then you've got to take time to cultivate good friends. You've got to take time to be with your family. You've got to take time to be with the people who are important to you, designing your life in those respects. Get away. Take the time. Reflect on your life. Recharge your batteries. Do
some growing away from your enterprise. Then when you come back to your enterprise, after you have taken this time to balance your life, you will find that on the job, working on your enterprise, things will really go much better. So those are the 5 simple steps to go from average to fortune. Get serious, get smart, get going, get excited, and get away. I have a very interesting subject. ओके सो ये वीडियो मेरे को अभी मिली, ठीक है, ये मुझे पहले नहीं मिली थी, ये मैंने कल सेव करी थी, कल मतलब अपने आप को वो करते हैं शेयर कर ली थी। बट पहला क्या बोला उन्होंने, गेट सीरियस। अब गेट सीरियस तो मैं कैसे बताऊँ तुम्हें मैं कैसे हूँ, नहीं बता सकता। दूसरा क्या बोला उन्होंने, गेट स्मार्ट, राइट, गेट स्मार्ट बोला उन्होंने। अब रुक जाओ, Get serious, गेट सीरियस, get smart, तो स्मार्ट करने के लिए अपन बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऑडियो बुक वैसे भी सुनता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ही पढ़ लूँ तो सब स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 पार्ट हो गए। गेट गोइंग रोज कर रहे हैं अपन जिम जा रहे हैं, रुको 1 सेकंड बता दूँ। दूसरा है गेट गोइंग। तीसरा get excited. I am excited. Can you see on my face? I'm not excited. I am excited. You can see any of my video. I am excited most of the time. 95% of the time. So I am excited. You have to be excited about basic things that you do in your life. If you're reading a book, get excited. Just tell your mind that it's gonna be a lot of fun. Just tell your mind, and your mind will release dopamine, serotonin, whatever you feel like. It will release THC. You're gonna be high if you get excited. Even if you're doing nothing, you will be high. So that's a good thing. Get excited. And get away. I have a And very get away. So yes, get away. I spend most of the time alone doing nothing. जिम में भी सिर्फ अपने आप को टाइम देते हैं, ऑफिस में भी नहीं, ऑफिस में बात कर लेते हैं यार, और नहीं बट अकेले हैं। हाँ, सर्कल बना रहे हैं अपना, बन नहीं पा रहा पर बना रहे हैं। पर गेट अवे वाला पार्ट हो गया। गेट अवे जाके जो सर्कल बनाने की बात इसने कही अभी, वो नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर अपन वर्क कर रहे हैं। तो इसी बात से स्टार्ट करते हैं अपन क्या, अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड। सो सी यू गाइस, गेट स्मार्ट। अपन जिम जा रहे हैं, 9 वीक्स की स्ट्रीक हो गई है इस बार। सो यू देख सकते हो बॉडी डोले शोले बन रहे कि नहीं बन रहे, बट कोई नहीं। अपने को भी रोटी बनानी है। छोटू भाई ने तो हमारी रोटियों से गिव अप कर दिया, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारी रोटी, बहुत टाइट बनती है यार, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अपन पढ़ेंगे अब बुक रिच डैड पुअर डैड, जहाँ से स्टॉप करा था वहीं से पढ़ेंगे। वो लास्ट चैप्टर जो सेकंड लास्ट चैप्टर में आएंगे हम लोग। सो ही इज जस्ट टेलिंग अस हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट आफ्टर इट। सो हियर वी गो, रिच डैड पुअर डैड, लेट्स गो। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत सिर्फ $42,000 थी। ओके, इसी तरह के यूनिट उस समय $65,000 में बिक रहे थे। उसे ये बहुत फायदे का सौदा लगा। एक्साइटेड होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 हफ्ते बाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तुरंत फोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि इस मुद्दे पर उसने अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने कहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वो ज्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका दोस्त इन्वेस्टर है। रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी, तो रिचर्ड खुद को बचाने की कोशिश करने लगा और उसने बस यही कहा कि वो बस ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से हर महीने $1,000 रेंट मिल रहा था। सर्दियों के पीक सीजन में हर महीने $2,500 मिलने लगा, यानी कि $2,500। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वो शुरुआत में $5,000 चुका दे और रैट रेस से बाहर निकलने का प्रोग्रेस शुरू हो जाता। आज भी वो कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद हैं। बस आपको उन्हें कुछ ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और ये हम सबको इफेक्ट करता है। यही डाउट्स हमें ले डूबते हैं। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आजादी का मौका गवा देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं सीडी के बजाय टैक्स लेन सर्टिफिकेट में अपने एसेट का कुछ हिस्सा रखता हूं।
मैं अपने पैसे पर हर साल 16% कमाता हूं, जो कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से काफी ज्यादा है। ये सर्टिफिकेट रियल एस्टेट द्वारा सिक्योर्ड होते हैं और स्टेट के कानून द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, जो यकीनन ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेहतर होते हैं, जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है। वो भी काफी सेफ फॉर्मूला है। उनमें सिर्फ एक दिक्कत ये होती है कि उन्हें कैश में नहीं बदला जा सकता, तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सीडी मान लेता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीडी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ, तो वे मुझे बताते हैं कि ये रिस्की है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या इन्वेस्टमेंट मैगजीन से। उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं, और वे दूसरे आदमी को जो ऐसा कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम इनकम की उम्मीद करता हूं वो 16% होती है, पर जिन लोगों के मन में डाउट होता है वे सिर्फ 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। डाउट बहुत महंगा साबित होता है। मेरा मानना है कि यही डाउट और सनकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सेफ गेम खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने, सिर्फ आपके डाउट ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि रैट रेस से बाहर निकलना आसान है, इसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, पर इन डाउट्स के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। डाउट करने वाले लोग कभी नहीं जीत पाते। अमीर डैडी का कहना था, डाउट और डर के कारण इंसान डाउट करने वाला बन जाता है। ऐसे लोग सिर्फ बुराई करते हैं, जबकि जीतने वाले लोग एनालाइज करते हैं। ये उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने साफ साफ बताया कि क्रिटिसिज्म से दिमाग बंद जाता है, जबकि एनालिसिस से आंखें खुल जाती हैं। एनालिसिस के जरिए से जीतने वाले ये देख सकते हैं कि क्रिटिसाइज करने वाले अंधे हैं, और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं देख पाते हैं। दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते, उन्हें देखने की एबिलिटी किसी भी तरह की सक्सेस की चाबी है। जो लोग पैसे की आजादी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक दमदार तरीका है। पर जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे ये सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। किसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं, किसी को मेरे अमीर डैडी शक करने वाले लोगों के बहाने कहते थे। ऐसे लोग जो सिर्फ बुराई करते हैं, एनालाइज नहीं करते, ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनके डाउट्स और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, तो मैं जवाब देता हूं, आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं? वे ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए, टॉयलेट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रैट रेस से बाहर निकलने की आजादी के बारे में बात करता हूं और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे एनालाइज करने के बजाय बुराई करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता आपकी सक्सेस की चाबी को अपने अंदर समाये रहते हैं, अमीर डैडी का कहना था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज्यादा रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूं जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सक्सेस की चाबी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा मैनेजर खोजना। अक्सर किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे डील्स के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता, इसे सक्सेस की चाबी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट को ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये विचार किया कि किस तरह ज्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और रैट रेस से बाहर निकलने का प्रोग्रेस तेज किया जाए। जो लोग ये कहना जारी रखते हैं कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस पावरफुल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता।
उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और इंसान पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। एनालिसिस करने के बजाय वे एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट के मीडियम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने दोस्त के साथ गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है, या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वो तमाम कारण बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेंगी। ये फिगर मुझे पहले पता नहीं थी, हालांकि मैंने मौजूदा ऑयल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे हुए थे। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने तुरंत एक नई ऑयल कंपनी की खोज कर दी जिसे उसके रियल वर्थ से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर्स इस नई कंपनी को लेकर अच्छा खासा एक्साइटेड हो गया और मैंने 65 सेंट पर शेयर के रेट पर 15,000 यानी कि 15,000 शेयर खरीद लिए। फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत पर गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वो 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 पर शेयर हो गए और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। एनालिसिस करने के बजाय छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज्यादातर लोग ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में स्टॉक किस तरह काम करते हैं, तो ज्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉप एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है जो प्राइस गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता इस पर ध्यान फोकस करते हुए देखता हूं और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान फोकस करते हुए नहीं देखता हूं, तो मैं समझ लेता हूं कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी चीख रहे हैं, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट टूट रहे हैं। इसलिए वे अपनी अनचाही चीजों से बचते हैं, पर वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वो शायद उन्हें कभी न मिल पाए। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गों को देखने का एक तरीका सुझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका बिजनेस चौपट हो गया और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर बस गुजर बसर कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हाँ कहने पर पहले इस रेसिपी के लिए 1009 बार ना कहा गया और वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी आदमी थे। अमीर डैडी हार्लेन सैंडर्स के बारे में कहा करते थे, जब भी आप डाउट में हो और थोड़े से डरे हुए हो तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर लें। कारण नंबर 3, आलस। बिजी लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस बिजनेसमैन की कहानियां पढ़ी हैं जो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफी मेहनत करता है। वो ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और वीकेंड में भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन जब वो घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, पर उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाने के बजाय वो काम में ही बिजी रहा। निराश होकर वो अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि उसकी जॉब चली जाती है। आज मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने बिजी हैं कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें अपने हेल्थ की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे बिजी हैं और वे बिजी बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है
अंदर से वे खुद जानते हैं। असल में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे जॉब में या बच्चों के साथ बिजी नहीं हैं तो वे टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में बिजी होते हैं। पर वे अंदर से जानते हैं कि वे किसी इंपॉर्टेंट चीज का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यहाँ आलस का मतलब है बिजी बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज्यादातर लोगों का पालन पोषण इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी मां कहा करती थी, लालची लोग बुरे होते हैं। पर हम में से हर एक अच्छी चीजें, नई चीजें, एक्साइटिंग चीजें हासिल करना चाहता है। तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए अक्सर माँ बाप इच्छा को गिल्ट से जोड़ देते हैं। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे भाई बहन भी हैं? ये मेरी माँ की फेवरेट कहावत थी। या फिर तुम क्या खरीदना चाहते हो? मेरे डैडी की फेवरेट कहावत थी, तुम ऐसा सोचते हो कि जैसे हमारे पास बहुत सा पैसा है। क्या तुम ये सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, पर उन शब्दों में जो गुस्सा और गिल्ट का मिक्सचर था, उसका मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुआ। या इसके अपोजिट गिल्ट का जाल ये था, मैं तुम्हारे लिए ये खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह से दिवालिया है, पर वो अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुंह मांगी चीज मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचाकर नहीं रखा है, पर उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे पोस्ट में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला है और वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगास ले गया। मैं ये अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। ये उसके महान बलिदान के शब्द थी। अमीर डैडी इस लाइन से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली घर में मुझे यही लाइन अक्सर सुनने को मिल जाया करती थी। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे ये कहें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस लाइन से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं, इस लाइन से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे ये सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये लाइन झूठी होती है और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उनका कहना था कि ये जानती है और ये कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चलकर एक्सरसाइज करते हैं। और आलसी दिमाग कहता है, पर मैं अभी थका हुआ हूं, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूं, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, ये सेफ नहीं है। मेरा पैसा डूब सकता है, वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरा बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये लाइन दुख से भरी हुई है। इससे लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और इसके बाद डिप्रेशन पैदा हो जाता है। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं, इस लाइन से संभावनाओं, एक्साइटमेंट और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसीलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, पर वे ये जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं। इस लाइन से एक ज्यादा मजबूत दिमाग और एक ज्यादा प्रोग्रेस करने वाली आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो। इसके बजाय वे हमसे ये कहते थे
कि तुम इसे कैसे खरीद सकते हो। और ये हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है। वे हमें गोल को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें गोल को हासिल करने के प्रोसेस की नॉलेज दे रहे थे। मेरी समझ से आज प्रॉब्लम यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर गिल्ट से जुड़ रहे हैं। ये उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में यही थॉट मौजूद रहता है कि आपको ये नहीं मिल सकती, या आप इसे नहीं खरीद पाएंगे, या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने रैट रेस से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस रेस से बाहर निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और आइडिया अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माता पिता की सीख। हम इसे नहीं खरीद सकते, या सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचो, या फिर तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में गिल्ट भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। ये WII FM रेडियो स्टेशन है, जिसका पूरा मतलब है व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? आदमी को बैठकर पूछना चाहिए कि अगर मैं हेल्दी, सेक्सी और अट्रैक्टिव हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है, या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसके लिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप कभी किसी ऐसी चीज से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको सिर्फ यही पूछना चाहिए, इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। पर बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। पर वो याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरह से कहते थे। गिल्ट लालच से बुरा होता है, क्योंकि गिल्ट के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में बुराई होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी बुराई होगी, और अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी बुराई होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारे एजुकेशन से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो ये सुना है कि एक समय में वो बहुत दुबला पतला और कमजोर सा था। दूसरे ने जोड़ा, हाँ मैंने भी ये सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वो हर रोज जिम जाता है, वहां उसने एक्सरसाइज करने की आदत डाली है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वो ऐसे ही करता होगा। ग्रुप के डाउट करने वाले आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा, और इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं, चलो बियर पिए। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे एग्जाम्पल से सीखूं। अमीर डैडी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वो खास कारण है जिसके कारण उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। अमीर डैडी ने कहा, उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और ऐसा तब भी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। आमतौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा, पर उन्हें अपने बिल का पेमेंट तो करना ही होता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स पे नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा।
मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं सिर्फ खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, गवर्नमेंट को पैसे देने के पहले। पर तब क्या होगा जब आपके पास काफी पैसा नहीं हो? मैंने पूछा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूं, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, चाहे मेरे पास पैसा कम हो। मेरे लिए गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा असेट वाला कॉलम। पर क्या गवर्नमेंट के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, अगर मैं उन्हें पैसे न दूं तो, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले पैसा दो, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? इंस्पिरेशन, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनके पैसे नहीं चुकाऊं तो कौन ज्यादा जोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार, यानी कि क्रेडिटर्स? आपकी बजाय आपके क्रेडिटर ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे, मैंने क्लियर ऑप्शन चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसा देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे क्रेडिटर्स को पैसा देने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे इनकम के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी इंस्पिरेशन बन जाता है। मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण ही मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूं। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया ये ऐड देखा है। तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। अब मैं इन डरावने क्रेडिटर्स से जरा भी नहीं डरता। मुझे मेरे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे लास्ट में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरे मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 45 किलोग्राम के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा कमाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं।
जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है, वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें। ने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता। मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह देखा है। तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। अब मैं इन डरावने क्रेडिटर्स से जरा भी नहीं डरता। मुझे मेरे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे लास्ट में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरे मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 45 किलोग्राम के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा कमाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है, वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें। 8वां चैप्टर, बाधाओं को पार करना, यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 9 यानी कि 9, शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, पर ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में कि मैंने किस तरह शुरू किया, मैं डे टू डे के हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को बताना चाहता हूं। बड़े डील्स को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं, ये मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो अगर आप ठान लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के डील्स को खोजने के लिए हमारे में फाइनेंशियल टैलेंट होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। ये इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारे कल्चर ने हमारे अंदर ये संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस कल्चर ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो एनकरेज किया ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, पर हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपने फाइनेंशियल फेलियर के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो गवर्नमेंट या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, पर इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में एजुकेट होते हैं। मैसेज ये है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो
तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से वेस्टर्न सोसाइटी के 90% से ज्यादा लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉब ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं, तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 स्टेप्स दे सकता हूं। मैं आपको सिर्फ वही स्टेप्स बता रहा हूं जिन पर मैं चला हूं। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के स्टेप्स बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 साल के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा, उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खान मिल जाएगी? उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे देख नहीं पाती। और मैं ये कहूंगा कि ये सच है। रियल एस्टेट बाजार में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 प्रॉमिसिंग डील कर सकता हूँ, जबकि एवरेज आदमी बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है, जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को डेवलप करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको आगे 10 स्टेप्स बता रहा हूं जो भगवान द्वारा दी गई ताकतों को डेवलप करने का प्रोसेस है। ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। 1, मुझे हकीकत से बड़ा कारण चाहिए, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, तो वे हाँ कहेंगे। So, अभी बचा है ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes का ऑडियो बुक। लास्ट चैप्टर चल रहा है एंड वो बताने वाले हैं कि 10 स्टेप्स जो उन्होंने अपनाए, तुम अपने स्टेप्स खुद बना सकते हो। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपन ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, अपन खाएगा, खा के सोएगा, मौज मारेगा। कल अपन फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो सी यू गाइस, GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।